not feed. That many times Yashoda Mai could not feed. That is why when the Leela subsided, when the Govardhan used 2 katta for methi chamar haryali and 2 katta for palak paneer. So I have boiled the palak. You can wash palak. See any green curries, you should. हाँ. हरे कृष्णा. अभी बहुत कोई भी लीफी वेजिटेबल इट शुड बी वॉश थरोली. बहुत अच्छे से वॉश करना है, उसमें मिट्टी बहुत रहती है. देन बॉइलिंग वाटर में यू कैन ऐड पालक विच इज वॉश्ड. वंस इट इज बॉयल थोड़ा टेंडर हो जाएगा उसका, यू कैन सी ये थोड़ा सॉफ्ट दब जाएगा इजीली. उसके बाद यू रिमूव इट. या एंड you can just put little cold water if you want it immediately. If you don't want to use immediately, you can just let it cool down. Okay, so this is boiled spinach. I will just grind it and make a smooth paste. So in that we will add tomatoes and we will also grind the tomatoes along with that. Get 2, 3, 4 tomatoes. Who use a knife though? People who use onion, no, they make very thick gravy because of onions, but we don't use onions, so we have to use substitutes. So I will tell you some secret ingredient which you can actually use to improve the consistency. So in palak paneer, anyways, I like it to be pure. Jitna zyada palak rahega, you can put more palak also, so that will taste very nice. So in this we are, I don't know whether it's showing you. Yeah. So I am adding little tomatoes. I've added 3 tomatoes now. Actually you can add more palak. You can take more palak. Jitna zyada thick palak rahega अच्छा है. Little bit of kaju, almost 1 tablespoon I'm adding. Okay. Just to add some thickness. Okay. Grind it. Make a smooth paste and get it. I'm using 1.5 tablespoon of oil. See in this, all these rich curries that we make, North Indian curries which are rich with gravies and all, we usually, it's better to use Shah Jeera. So this is Shah Jeera which is little thinner and coarser than normal Jeera. If you don't have Shah Jeera, it's okay, we can use normal Jeera also. Never use, okay, जैसा मेरा खुद को ही नहीं दे. Never use mustard seeds, राई दाना. वो हम साउथ इंडियन आइटम्स में यूज करते हैं. नेवर यूज राई इन चाइनीज, पूरा स्पॉइल हो जाएगा उसका टेस्ट, वो इंडियन टेस्ट दे देगा. सो इफ यू वांट टू हैव अ रिचर टेस्ट, डोंट यूज दिस राई. we'll use only for some daily सब्जीज, डेली करीज, ड्राई करीज, उसके लिए ये अच्छा है. और साउथ इंडियन करीज. बट फॉर नॉर्थ इंडियन रिच सब्जीज वी डोंट यूज राई मस्टर्ड सीड्स. ओके, सो नाउ या ओके, we are making palak paneer. So yeah, one more very important thing that I always add is hing. That's my favorite ingredient because वो बिना हींग के टेस्ट नहीं आता. And some people say अच्छा you use lot of hing, but that is good for digestion also. Actually our Indian kitchen is the best Ayurvedic kitchen. It can cure all the diseases. Our haldi is the best antiseptic. Our garam masala, it has dalchini, ilaichi, long. It can cure cold, everything. So if we use very good spices, in foreign countries, they don't know spices. They don't even know the name of the spices. Zyada, and especially I have a special hing which we get from Mathura. It is very strong, very pure. So only this much hing. 1 pinch of hing is enough. Using ये measurement spoon के हिसाब से है. So you all can see ये 1 teaspoon है. उसके हिसाब से आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं 1 teaspoon. कुछ लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते. कोई सब्जी में खाली जीरा ही जीरा दिख रहा है, अनलेस इट्स जीरा आलू और समथिंग. यू शुड नॉट पुट टू मच ऑफ जीरा एंड नहीं. मेरे बच्चे लोग की मम्मी आप इतना कचरा डाल देते हो. तो समटाइम्स आई एम फॉन्ड, मतलब वो उपमा वगैरह रहता है ना, थोड़ा ज्यादा डालती हूँ, बट दे डोंट प्रेफर, सो कम ही डालो ताकि ज्यादा नहीं रहे. तो 1 टीस्पून जीरा वी आर पुटिंग. थोड़ा हींग. So this is
palak paneer. So usually, see, my technique is whatever I cook, I usually put everything in oil. I fry in the oil masala, so that will give you more flavor and it will give good color, right? So what I do, इसमें we don't add हल्दी ज़्यादा, क्योंकि हल्दी से येलोइश कलर आएगा. We want to give green color, so we will not add हल्दी in this. किसका खुला हुआ है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ. ये बहुत नाम का हल्दी, जस्ट साइकोलॉजिकली मैं डाल रही हूँ बोलकर, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. तो बिकॉज कलर विल चेंज, तो आई एम पुटिंग ऑलमोस्ट 2 टीस्पून धनिया पाउडर. ओके, a little bit of रेड चिली पाउडर. इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल चिली पाउडर डाल रहे हैं. कश्मीरी रेड चिली पाउडर गिव्स अ वेरी गुड कलर. तो जब हमको रेड कलर की ग्रेवी चाहिएगी तो दैट टाइम वी पुट कश्मीरी रेड चिली पाउडर. तो दिस इज अ प्यूरी विच इज मेड स्पिनच, टोमेटो एंड लिटिल बिट ऑफ काजू. तो यू कैन सी, इसको अच्छा सेकना है till the oil comes out. Okay. ये पनीर ला दो. बटर है वहाँ पर, टपरवेयर का डब्बा है, ब्लू कलर का बॉक्स. You have to mix. इसमें हम थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं. It's not compulsory. We'll put little bit of cream. I am using Amul fresh cream. So you can see the oil is coming. Now we can put the paneer. So now what I do, I usually put the masala after I put the paneer, because एक थोड़ा idea होता है. Otherwise, you know, it's very difficult. So now we put all the main ingredients that is required. I'll put salt. Salt we can put to taste. I usually use rock salt even for normal cooking. So वो थोड़ा ज़्यादा लगता है. जो normal salt है, जो टाटा salt, वो बहुत कम डालना है, because that is very sour. ऑलरेडी हमने एक धनिया पाउडर डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया. ओके, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट, इन द ऑयल ओनली वी हैड टू पुट जिंजर चिली पेस्ट, बट बिकॉज आई फॉरगॉट आई पुट नाउ, बट नो प्रॉब्लम, द टेस्ट विल बी सेम. थोड़ा जिंजर चिली पेस्ट आई एम पुटिंग ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून, बिकॉज इसमें मेजर टेस्ट ग्रीन चिलीज का रहना चाहिए. वी डोंट पुट टू मच ऑफ रेड चिली पाउडर इन पालक पनीर. मेन इसमें ग्रीन चिलीज का टेस्ट आना. तो आई ऑलवेज कीप इट टुगेदर. आई ग्राइंड चिलीज एंड जिंजर इन इक्वल क्वांटिटी. तो इफ हाफ kg अदरक इज देयर, हाफ kg ग्रीन चिलीज, नॉट द टू स्पाइसी वन, देयर विल बी, हम ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून डालेंगे. ओके, एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज गरम मसाला. आई यूज अ गरम मसाला. तो ये हमारा होममेड गरम मसाला है. मैं मदर इन लॉ इज एक्सपर्ट, शी मेक्स होममेड गरम मसाला. इफ यू वांट आई विल टेक रेसिपी एंड आई विल शेयर विद दैट यू ऑल. बट बहुत हार्डवर्क लगता है, उसको ड्राई करना रहता है, कूटना पड़ता है हाथ से, देन मिक्सर में करना रहता है. इफ यू ऑल कैन डू दैट, अदरवाइज गेट अ गुड क्वालिटी गरम मसाला. गरम मसाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अच्छा फ्लेवर आता है. उसमें भी आई एम पुटिंग गरम मसाला. इन पालक पनीर वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट. थोड़ा whenever हम खट्टा ऐड करें, इसमें खट्टा किस चीज का आ रहा है? कैन एनीवन टेल? I have not added lemon, I have not added curd till now, I have not added something. तो इसमें पनीर, इसमें खटाई किस चीज की आई है? टोमेटोज. यार टोमेटोज खट्टे रहते हैं ना, इसलिए देसी टोमेटोज यूज करना है. डोंट यूज बैंगलोरी टोमेटोज. सम पीपल दे यूज बैंगलोरी टोमेटोज, दे लुक वेरी ब्यूटिफुल, बट इट इज ओनली गुड फॉर सैलड्स. बाकी कुछ काम का नहीं है. इट शुड बी अच्छा बारीक निकला हुआ मेथी. देन इसको एकदम बारीक काट लेना है. इसको मटर मेथी मलाई भी बोलते हैं कई लोग. उसमें मटर डाल देते हैं, और अगर नॉर्मल मेथी चमन हरियाली, उसमें विदाउट मटर भी बना सकते हैं, ओनली विद ग्रेटेड पनीर. तो दोनों भी
बेसिक्स के सेम ही है, ग्रेवी सेम है, बट ओनली मटर का डिफरेंस है। Okay? ये धो के ला दो ना। मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके आप एक टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा, 1.5 टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा फ्लेवर वी यूज ग्रीन चिलीज, इसमें स्पाइस जो रहेगा तीखापन खाली ग्रीन चिलीज का है। इसमें आई एम नॉट एडिंग ब्लैक पेपर, आई एम नॉट एडिंग रेड चिली पाउडर ऑल्सो। उसमें अगर किसी को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। आई पुट चॉप्ड चिलीज, ये बारीक चिलीज हम डालते हैं इसमें। इसको अच्छा सॉटे करना है, इसमें वॉश करके डालना है। थोड़ा सा पनीर खाली ग्रेवी सॉटे हो गया है। इससे उसका जो बॉइल्ड स्पिनच है उसका ग्रेवी में इसमें डाल दूंगी। पालक है तो आई उतना मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसमें जो थिकनेस आए दिखाइए, जैसे मलाई आती है ना, आप वो डाल दीजिए टू टेस्ट। मैंडेटरी, थोड़ा मीठा टेस्ट ही रहता है, अराउंड 2 टीस्पून शुगर। ओके, इलायची पाउडर, ये इसको एक अलग फ्लेवर देता है। सो नो गरम मसाला इन दैट, बट ओनली प्योर इलायची पाउडर। सो आई हैव ग्राइंडेड इलायची एंड आई मेड दिस पाउडर। ओके, ये मेरा छोटा स्पून है, ये 1/2 टीस्पून के बराबर है। तो मैं ब्लैक पेपर, वी कैन जस्ट पुट व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों भी हम डाल सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा ग्राइंडेड, ये क्या बोलते हैं, कसा हुआ ग्रेटेड, हाँ ग्रेटेड पनीर हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, थोड़ा थिक होने के लिए। सफल मटर, बट इफ यू हैव नेचुरल मटर यू कैन पुट दैट, तो उससे थोड़ा यार there are so many photographers. I'm getting nervous by that. So इसको we'll just use little bit of grated paneer to decorate. इसमें we don't, kothmeer and palak and methi will clash. So यहाँ इन लोग को दुख हो रहा है, इतना क्रीम क्यों डाल रहे हैं। चिक पीस या छोले हम जो बोलते हैं, ये इसको हम क्या करते हैं, मैंने रात को सोक किया है, ओवरनाइट सोक करना है, या फिर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स इफ यू वांट टू कुक। अगर सुबह आप सोक करोगे तो रात को बना सकते हो। उसमें वन सीक्रेट है, इफ यू वांट टू मेक पंजाबी छोले, दे आर वेरी ब्लैकिश इन कलर, ये आप ध्यान रखोगे। अगर हम जो इंडियंस बनाते हैं वो थोड़ा रेडिश इन कलर रहता है, तो अगर ब्लैकिश कलर लाना है तो पहले, जैसे हम लोग अभी तो इस्कॉन में आ गए जब से, वी आर नॉट यूजिंग चाय पत्ती। इसको जब बॉईल करते हैं ना, कैसे बॉईल करना है, ये छोले आप जो सोक है उसका पानी फेंक दो, रात का जो पानी है उसमें फ्रेश पानी डालो, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालो, थोड़ा सोडा, पानी डालना है उससे ज़्यादा, जितना छोला है उससे ऊपर आपका पानी रहना चाहिए। ये ड्राई आंवला है, ये ड्राई आंवला आपको कहीं पे भी मिलेगा, मोस्टली ओल्ड सिटी किराना स्टोर में मिल सकता है। तो ये थोड़े ड्राई आंवला, जैसे मैंने अभी 250 ग्राम्स छोले भिगाए हैं, उसमें मैंने इतने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के जितना मैंने आंवला उसमें डाला है बॉईल करते वक्त, सॉल्ट डाला है, एंड देन कुकिंग सोडा, जो नॉर्मल घर का वो सोडा रहता है ना, कुकिंग सोडा, वो मैंने डाला है ऑलमोस्ट दिस मच, 1/2 टीस्पून। ओके, इतना डाला है। अच्छा, जब वहाँ से बताओ, मेरे कैमरा नजर छोला तो थोड़े से 1 मुट्ठी भर का छोला भी इसमें डाल के आप उसको मैश कर लो, इसमें ग्राइंड कर लो। ये तेल अच्छा रहे तो अच्छा है। थोड़ा 2 टेबलस्पून ऑयल, 2.5 भी ले सकते, टेबलस्पून ऑयल ले लिया, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ग्राइंडेड टोमेटोज विथ छोले। ओके, एंड इफ यू आर you don't have a separate paste, you add green chilies and ginger also, and char jeera always tastes better
इसमें मैं 2 टीस्पून के जितना जीरा, 1 पिंच तेज पत्ता भी डाल रही हूँ शौक में, हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। ये थोड़ा छोला स्पाइसी रहना चाहिए तो मैं थोड़ा 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। इसमें भी ज़्यादा हल्दी नहीं डालते, धनिया पाउडर इसमें अच्छा डाल सकते हैं, 2.5 टेबल हम डालेंगे इसमें। इसमें ओके वील ऐड कश्मीरी पाउडर से ज़्यादा कश्मीरी चिली पाउडर अच्छा कलर देता है और उसमें तीखापन कम रहता है। ऑलरेडी हमने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, तो इसमें वी विल यूज दिस इज कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये आपको कोई भी ब्रांड में मिल सकता है। तो इसमें ऑलमोस्ट 2 टीस्पून मसाले आई एम पुटिंग। इसमें ऑलमोस्ट 3 टीस्पून मैंने छोला मसाला डाला, ठीक है, नहीं तो डाल काट। तो वी विल pour the gravy। दैट्स कसूरी मेथी। छोले में स्पेशल फ्लेवर कसूरी मेथी का आता है। तो ये जो कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी है, उसको हम थोड़ा हाथ से मैश करके इसमें डाल देंगे। वो पुदीना ड्राई, नमक डाल दूँगी, इसमें शक्कर नहीं डालती हूँ, सॉल्ट टू टेस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि छोले का पानी ड्रेन हो जाता है ना, तो उसका काफ़ी नमक चले जाता है। थोड़ा पानी इसमें स्पेशल फ्लेवर मेथी, कसूरी मेथी मैंडेटरी है। इसका दाल मखनी हो, छोला हो, ये सब बॉईल कर दो। सॉल्ट, सोडा, आंवला, ब्लैक पेपर, ये चारों चीज आप ऐड करोगे तो थोड़ा ब्लैकनेस वो कलर आएगा वैसा। हो गया मेरे से क्या? अदरक हरी मिर्ची का अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट माता जी। नहीं, वो तो लिख दिया, मतलब जिसके अलावा कुछ और डाला था आपने मतलब। मसाला, छोला मसाला डाला, कसूरी मेरा वो होता है, तुम लोग सब खा के जाओगे। क्या है अराउंड 350 ग्राम, 300 ग्राम्स के ऊपर। उसमें हम सॉल्ट टू टेस्ट थोड़ा डालेंगे। इसमें अगेन थोड़ा शक्कर डालेंगे। अब इसका 3 टेक्निक्स है, मैं आपको तीनों ही बता रही हूँ। एक टेक्निक है इफ़ यू यूज यीस्ट, अगर ड्राई यीस्ट रहता है, वेट यीस्ट रहता है, फ्रेश यीस्ट रहता है, वो बेकरीज वगैरह में मिलता है, तो जो यीस्ट यूज करते हैं वो 1 टीस्पून यीस्ट यूज, ड्राई यीस्ट आता है बॉक्सेस में आता है, जैसा विकफील्ड वगैरह कुछ ब्रांड्स के मिलते हैं ड्राई यीस्ट, तो उसको आप गर्म पानी में, नाक में घुस गया स्मेल उसको आप गर्म पानी में थोड़ा उसको सोक करना, जब यीस्ट पूरा पिघल जाता है तब आप उसमें डाल सकते हैं। तो यीस्ट से आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े लोग बोलते हैं यीस्ट क्योंकि माइक्रोब्स है, वी शुड नॉट ईट, तो यीस्ट नहीं खाना प्रेफर करते। यूजुअली वी शुड नॉट यूज यीस्ट, तो हम नॉर्मल बेकिंग पाउडर और सोडा भी यूज कर सकते हैं। ये अगर हम बेकिंग पाउडर सोडा यूज कर रहे हैं तो मैं मेरा सोडा का आ गया, छोटी चम्मच है, इसको मैं 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 स्पून सोडा लूंगी, पूरा मारना पड़ता है। बट नाउ आई विल टेल यू समथिंग एकदम क्विक एंड इजी। ये मेरी बुआ जी ने, मेरे बुआ सास ने मेरे को सिखाया था, सबसे क्विक रेसिपी वो सोडा वाटर है। वी कैन डायरेक्टली नीड इट विद सोडा वाटर, नहीं है कि 2 घंटे रखो, 3 घंटे रखो, ये इंस्टेंट सोडा वाटर रहता है, कोई भी ब्रांड का आप सोडा वाटर ला सकते हैं। ये आप डायरेक्ट सोडा वाटर से इसको नीड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो इसको बहुत देर भिगा के रखने का, गर्म पानी से सानने का, वो सब टेंशन भी नहीं रहता है, बहुत इंस्टेंट हो जाता है, अच्छा फूल जाता है। बस कर्ड भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा सॉफ्टनेस आता है, कर्ड भी डाल दीजिए, क्या आप कर सकते हैं। ये सोडा बॉटल का ध्यान रखिए कि आपका होते ही इसको ढक्कन से बंद करिए, नहीं तो इसका पूरा सोडा फिस आउट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट यूज इट। इसको अच्छा सा स्मूथ फिनिश दे देंगे, कवर कर दो, वो थाली है ना। ऑयल फॉर फ्राइंग एंड दूसरी तरफ हम कुकिंग करेंगे। तो छोटा हाफ करिए थोड़ा। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ यू कैन ऐड कॉर्न ऑल्सो, कॉर्न या बेबी कॉर्न वो सब भी डाल सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड शैल आई ऐड बेबी कॉर्न, कॉर्न्स। इसको भी हम सर्कल में काटेंगे, कभी बेबी कॉर्न स्लाइस भी। तो पनीर हम सेपरेटली फ्राई करेंगे,
ओके, जब तक फ्राई का बॉल्स। सो अगेन कोफ्ता कैन बी ऑफ वेरियस। कोफ्ता बना सकते हो मैश्ड पनीर, उसके साथ कॉर्नफ्लोर पेस्ट, कॉर्नफ्लोर मैदा ऐड करके भी बना सकते हैं पनीर बॉल्स। यू कैन मेक कैबेज बॉल्स। कैबेज को भी हम अच्छा ग्रेट करके उसमें बेसन, कैबेज और घिया में बेसन डलेगा। अभी ये जो रिच कोफ्ता है उसमें मैं पोटैटो और इसका बना रही हूँ, इसमें और रिच बनाना है। So there are 3 layers to that kofta. So it takes lot of time. I cannot teach you everything in a day, so I have not used. But जिसको भी इंटरेस्ट है, आलू बॉईल करके उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के मैदा डाल के आउटर लेयर के लिए मैश करके बना लो। उसमें नमक और थोड़ा अजीनोमोटो, थोड़ा ब्लैक पेपर, और उसके बीच में कैरेट और बीन्स का लेयर रहता है। या फिर आपको उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो ड्राई फ्रूट को थोड़ा कूट लो, गाजर सॉरी किशमिश, काजू, बादाम, इसको थोड़ा थोड़ा पीसेस में कूट लो, मिक्स कर लो। एंड पहला आप आलू में ही कैरेट और बीन्स एकदम बारीक कटा हुआ बॉइल्ड, उसको मैश कर लो। ओके, उसमें आप बीच में ड्राई फ्रूट स्टफ करके वो कोफ्ता भी बना सकते हो। दैट इज ड्राई फ्रूट कोफ्ता। वो मेरे फादर को मेरे हाथ का बहुत पसंद, वो बहुत रिच रहता है, एकदम मुगलाई स्टाइल जो आप बोलते हो ना, एकदम रिच आइटम रहता है, बट बहुत हैवी रहता है वो। आप एक कोफ्ता खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, उतना ड्राई फ्रूट्स रहता है उसके अंदर बाहर हर जगह ड्राई फ्रूट। एंड देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम आल्सो। सो दिस इज ऑलरेडी golden brown, so I just, so these are the various kind of koftas you can make. You can deep frying for karai vegetable. इसमें थोड़ा मटर भी डाल रही हूँ मैं। दिस इज सफल मटर, सो वी नीड नॉट बॉयल इट, वी नीड नॉट फ्राई इट। इसमें वेजिटेबल्स कैन बी ऑफ योर चॉइस, आपको जो पसंद है इसमें डाल सकते हैं, बट पोटैटोज भी मैं इसी में एक साथ फ्राई कर दे रही हूँ। ग्रेवी में डालेंगे तो थोड़े से हम मखाने भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। वो यू कैन यूज। बेनिफिट ज्यादा नहीं है, इट्स बोलते हैं हड्डियां कमजोर होती है एंड ऑल दैट, सो इट्स टेकिंग टाइम। It is like into 2. हाँ, मैं usually into 4 काम करती हूँ। Somehow पूरा it could be half fried, मतलब थोड़ा एकदम ज्यादा फ्राई होना जरूरी नहीं है इसमें। इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। Nowadays I am air frying it. We can normally air fry in an air fryer, या फिर नॉर्मल हम कढ़ाई में तेल थोड़ा डाल के उसको सॉट करके नमक डाल के सिजा सकते हैं। मिक्स वेज करी का ये रेडी है, इसका ग्रेवी हम अलग से बनाएंगे। जब तक इसमें कट किया, दिस इज फॉर तंदूरी गोभी। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत क्विक बनता है एंड ये अच्छा लगता है। सिंपल बीन्स, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ओके, एंड मटर, दैट पीस आर यूज। अब उसका ग्रेवी, ये रेड ग्रेवी है, इसके लिए हम टोमेटोज लेंगे, यूज लिटिल बिट ऑफ काजू। ओके, काफी लोग सिर्फ काजू का बनाते हैं। आई प्रिफर लिटिल हेल्दियर वर्जन, आई ऐड लिटिल बादाम ऑल्सो, तो थोड़ा ताकत भी होता। एंड लिटिल बिट ऑफ सनफ्लावर सीड्स, ये वाटरमेलन सीड्स एंड लिटिल बिट ऑफ सनफ्लावर सीड्स ऑल्सो। ये तो हेल्दी वर्जन है। इफ यू वांट टू मेक इट अनहेल्दी, यू कैन यूज ओनली काजू ऑल्सो, तो इट्स अप टू यू, आपको जो भी यूज करना है। तो ये ग्रेवी में इसमें हाँ? हींग है। ग्रेवी में, हाँ, चिरो। इसमें भी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा अच्छा कलर आने के लिए। इसमें धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा धनिया पाउडर हम अच्छा डालेंगे, थोड़ा हल्दी, काजू वगैरह का। ये थोड़ा व्हाइटिश कलर रहेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाला है। इसको हम पानी डाल के पूरा यूज कर सकते हैं। पानी अभी ग्रेवी में इसमें ये भी डीप फ्राई पाउडर डाला। अभी हमने कलर ऐड ही नहीं किया इसमें, ये रेड ग्रेवी है तो दिस शुड बी प्रॉपरली रेड। जो पनीर बटर मसाला है उसका भी सेम ग्रेवी रहता है, उसमें खाली एक डिफरेंस रहता है,
तो पनीर को मैं मैरिनेट करती हूँ, तो वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, लेकिन ग्रेवी सेम ही रहेगा। रेड ग्रेवी जो रहता है वो सेम रहता है। तो अभी हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि अभी उसमें मसाला डालेंगे और ये अच्छा फिर तेल छोड़ेगा। वेजिटेबल में अगर आप इसको नवरत्न कोरमा बनाना चाहते हो तो जीरा डालती हो ना, तब डालना। मैं उसको उतना हैवी, मेरे बच्चे काजू वाजू बिल्कुल नहीं खाते, निकाल के फेंक देते, तो मैं आई एम नॉट पुटिंग काजू इन दिस। ओके, अब इसमें मसाले डाल देंगे। नमक मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है इसमें, तो अभी सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ मेरा सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट है, थोड़ा ज़्यादा लगता है क्वांटिटी। आप लोग अगर नॉर्मल सॉल्ट डाल रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा कम डालिए। इसमें रेड चिली पाउडर हमने पहले डाल दिया है, ग्रीन अदरक हरी मिर्च पहले डाल दिया है, और इसमें एक धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा जीरा पाउडर। ओके, और ये चाट मसाला है, इसका रेसिपी मैं कल बताऊंगी। ये मेरा घर का होममेड चाट मसाला है, तो मैं पनीर मसाला कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल घर के मसाले। ये थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डालेंगे, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और लास्ट में गरम मसाला। గిన్నెలగించే పోవాలా